ایک ایسا کالا شخص آئے گا جو خانہ کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کی غلاف کو آگ لگائے گا اور ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس آدمی کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ٹانگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، مکہ مکرمہ کے نشیبی حصے میں واقع خانہ کعبہ اس مقام پر بنا ہوا ہے جہاں زمانے قدیم میں جب بھی بارش یا سیلاب آتا تو سارا پانی وہیں اکٹھا ہو جاتا اور بار بار اس مقدس عمارت کی دیواروں اور بنیادوں کو نقصان پہنچاتا۔ اہل مکہ نے کئی بار اس نقصان سے بچنے کے لیے کعبہ کے اطراف ایک مضبوط بند بنانے کی کوشش کی، مگر پانی کے طوفانی ریلوں کے سامنے وہ بند زیادہ دیر نہ ٹک سکا اور ہر بار ٹوٹ کر بیکار ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیلاب کا سارا دباؤ دوبارہ کعبہ پر پڑتا رہا، جس سے دیواریں کمزور سے کمزور تر ہوتی گئیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لگنے لگا جیسے یہ مقدس عمارت کسی بھی لمحے زمین بوس ہو جائے گی۔ اہل مکہ کے دلوں میں خوف و تشویش بڑھ گئی تھی، سب چاہتے تھے کہ اسے گرا کر دوبارہ مضبوطی سے تعمیر کیا جائے، مگر ایک پرانا عقیدہ ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے کعبہ کی دیوار کو نقصان پہنچایا تو فوراً آسمانی عذاب نازل ہو جائے گا۔ اسی ڈر نے کسی کو بھی تعمیر کا حوصلہ نہ دیا، مگر بارشوں اور سیلابوں کے مسلسل حملوں نے عمارت کی حالت اس حد تک بگاڑ دی تھی کہ مرمت کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ اس وقت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کے ایام گزار رہے تھے۔ نرم مزاج، بردبار اور ہمدرد طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہل مکہ کے کاموں میں شریک رہتے اور دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھتے۔ کعبہ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر لاحق تھی اور آپ دوسروں سے بڑھ کر اس معاملے کی اہمیت کو محسوس کرتے تھے۔ ناظرین، اسی ایک چیز باقی نہ رہا، اس زمانے میں کعبہ کے اندر ایک کنواں موجود تھا جہاں آنے والے زائرین اپنی نظریں اور قیمتی تحائف ڈال دیتے تھے، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے اس کنویں سے قیمتی اشیاء چرا لی، کیونکہ اس وقت کعبہ کی دیواریں نیچی، کمزور اور بغیر چھت کے تھیں، جس کی وجہ سے چور کے لیے اندر گھس جانا آسان تھا۔ جب وہ چور گرفتار ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، لیکن اس واقعے کے بعد اہل مکہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید تاخیر نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس مقدس مقام کو محفوظ رکھنے اور کنویں کے مال کو چوری سے بچانے کے لیے لازم تھا کہ پرانی دیواریں منہدم کر کے ان کی جگہ مضبوط اور اونچی دیواریں بنائی جائیں اور کعبہ پر چھت بھی ڈالی جائے تاکہ یہ مقدس گھر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے پیچھے ایک نہایت حیران کن اور دلچسپ واقعہ بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ کے اندر موجود اس کنویں میں جہاں لوگ اپنے نذرانے ڈالتے تھے، ایک خطرناک اور زہریلا سانپ رہتا تھا۔ دن کے وقت وہ کنویں سے نکل کر کعبہ کی دیوار پر چڑھ جاتا، دھوپ میں پھیل کر آرام کرتا اور جیسے ہی کوئی قریب آنے کی جرت کرتا فوراً پھن پھیلا کر خوفناک انداز میں ڈسنے کو لپکتا، جس سے لوگ گھبرا کر بھاگ جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی شخص مرمت یا تعمیر کا ارادہ کرتے ہوئے ڈر جاتا۔ مگر ناظرین، اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھے۔ انہی دنوں ایک طاقتور عقاب آسمان سے تیزی کے ساتھ نیچے اترا، اس سانپ پر جھپٹا، اسے اپنے پنجوں میں دبوچا اور اڑا کر لے گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو عقاب کے ذریعے اٹھوا کر حرم کی زمین پر گرا دیا، پھر زمین نے اسے نگل لیا۔ علماء کے مطابق یہی سانپ قیامت کے قریب دوبارہ صفا پہاڑ کے قریب ظاہر ہوگا، لوگوں سے گفتگو کرے گا اور اسے دعوت الارض کہا جائے گا۔ ناظرین، وہ زمین سے ایسے نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال جب یہ رکاوٹ ختم ہوئی تو اہل مکہ نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے تعمیر کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ انہی دنوں ایک یونانی تاجر اور ماہر کاریگر باقوم کا جہاز سمندر میں طوفان کے باعث جدہ کے ساحل کے قریب ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ باقوم لکڑی کے کام اور عمارت سازی میں اپنی مہارت کے باعث مشہور تھا۔ جب مکہ کے لوگوں کو اس حادثے کی خبر ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچے، جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے خرید لیے تاکہ ان لکڑیوں کو کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکے۔ اسی موقع پر انہوں نے باقوم کو دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ مکہ چلے اور اس مقدس تعمیر کی نگرانی کرے۔
बाकूम ने यह पेशकश कबूल कर ली और इसके साथ एक मकामी माहिर कारीगर को भी शामिल कर लिया गया ताकि काम बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो। यूं खाना काबा की तामीर नौ का अजीम मंसूबा शुरू हवा। मक्का के तमाम कबाइल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई कबीला इस सादत से महरूम ना रहा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बाबरकत काम में बनफ्से नफीस शरीक थे। पत्थर उठाते, मिट्टी डालते और पूरे इखलास के साथ इस मुकद्दस खिदमत को अंजाम दे रहे थे। नाज़रीन कराम, खाना काबा की तामीर के लिए तमाम जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया गया। मक्का के इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों से नीले पत्थर लाए गए और तामीर का अमल पूरी जिम्मेदारी, दिलचस्पी और इत्तेहाद के साथ जारी रहा। जब दीवारें 5 से 6 फुट तक बुलंद हो गईं, तो एक निहायत नाजुक मरहला दरपेश आया। वो लम्हा जब हजरे अस्वद को उसकी असली जगह पर नस्ब किया जाना था। यह वो एजाज था जिसकी तमन्ना हर कबीले के दिल में मौजूद थी। चुनांचा नाज़रीन, ये मसला चंद लम्हों में बहस व तकरार में बदल गया। हर कबीला चाहता था कि ये शरफ सिर्फ उसे हासिल हो। कोई भी पीछे हटने को तैयार न था। देखते ही देखते बात तल्ख कलामी से बढ़कर धमकियों तक पहुंच गई। तलवारें म्यान से निकल आईं और जंग के आसार नुमाया होने लगे। एक कबीले ने हद पार करते हुए ऐलान किया कि वो किसी दूसरे कबीले को हजरे अस्वद रखने की इजाजत नहीं देगा। कदीम अरबी रस्म के मुताबिक जब कोई शख्स अपनी जान कुर्बान करने की कसम खाता तो वो खून से भरे प्याले में उंगलियां डब्बोकर हलफ लेता। लिहाजा इस कबीले के सरदार ने खाना काबा के अंदर खून से लबरेज प्याला उठाया और कबीले के बहादुर जवानों ने अपने हाथ इसमें डब्बोकर यह कसम खाई कि अगर किसी ने हजरे अस्वद को नस्ब करने की कोशिश की तो वो अपनी जानें दे देंगे। नाजरीन, पूरे 4 दिन तक मक्का शहर कशीदगी में डूबा रहा। हर तरफ खौफ की फजा थी। लोग इस अंदेशे में मुब्तला थे कि कहीं ये तनाजा खूनरेजी में ना बदल जाए। ऐसे नाजुक मौके पर कुरैश के एक बुजुर्ग जो निहायत अक्ल फहम रखने वाले थे, आगे बढ़े और चाहा कि यह मसला किसी नुकसान या लड़ाई के बगैर हल हो जाए। उनकी दानिशमंदाना सोच ने वो हल तजवीज किया जो बाद में अमन, इत्तेफाक और भाईचारे की अलामत बन गया। नाजरीन, उनकी तजवीज के मुताबिक तय पाया कि अगली सुबह सफा की पहाड़ी की सिमत से जो शख्स सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होगा वही इस मामले का फैसला करेगा और तमाम कबाइल बिला चूं चुरा इसके फैसले को तस्लीम करेंगे। सुबह हुई तो सब निगाहें खाना काबा के दरवाजे पर जमी थीं कि सबसे पहले कौन दाखिल होता है। अल्लाह की कुदरत देखिए। सबसे पहले जो हस्ती अंदर दाखिल हुई वो नबी आखिरुल ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। जैसे ही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो खुशी के नारे बुलंद हो जाते हैं और सब एक जबान होकर कहते हैं, ये तो हमारे सादिक और अमीन हैं, हम इनके फैसले पर राजी हैं, वही हमारे सरदार है। नाजरीन मोहतरम, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये संगीन सूरत हाल देखी तो निहायत समझदारी से फरमाया, एक चादर लाओ। फौरन एक चादर लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजरे अस्वद को उठाया और एहतियात से उसे चादर के दरमियान रख दिया। फिर तमाम कबाइल के नुमाइंदों को हुक्म दिया कि तुम सब उसके किनारे पकड़ लो और मिलकर उसे उस मकाम तक पहुंचाओ जहां उसे नस्ब किया जाना है। सब ने मिलकर चादर उठाई, हजरे अस्वद को मुकर्ररा जगह तक ले गए और जब वहां पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे उठाकर अपनी नूरानी उंगलियों से उसकी जगह पर रख दिया। नाजरीन, यूं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानाई और फहमो फरासत से एक बड़ा खून खराबा टल गया। वरना उस जमाने के अरब मामूली बात पर तलवारें सौंतने और जंग छेड़ने में देर न लगाते थे। यही वो तारीखी लम्हा था जिसने न सिर्फ कुरैश के दरमियान अमन कायम किया बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादिक को अमीन होने की अजमत को और ज्यादा नुमाया कर दिया। नाजरीन, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं नबूवत की इमारत का आखिरी पत्थर हूं। इस इरशाद में एक गहरा इशारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो हस्ती हैं जिनके जरिए नबूवत की इमारत मुकम्मल हुई और दीन हक अपनी इंतहा को पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को जाहिलियत, जुल्म और अंधे रसूमात के अंधेरों से निकालकर एक ऐसी उम्मत बनाई जो दुनिया के लिए मिसाल बन गई। नाजरीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत आमुल फील यानी हाथियों वाले साल में हुई। कुरान मजीद की सूरतुल फील में इसी वाक़े का जिक्र मिलता है। इसी साल यमन के हबशी गवर्नर अब्राहा ने मक्के मुकर्रमा पर हमले का मंसूबा बनाया था।
उसने सना में एक शानदार चर्च तामीर किया था जिसे कलीस कहा जाता था, और वो चाहता था कि अरब के लोग खाना काबा के बजाय इसी इबादत गाह को अपना मरकज बनाए। जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो उसने तकब्बुर में आकर काबा को मुनहदम करने की तैयारी की। नाजरीन, अबरहा एक बड़े लश्कर के साथ निकला जिसके आगे हाथी भी थे, और वो मक्का की सिमत बढ़ने लगा। यही वो वाकया है जिसकी वजह से इस साल को आमुल फील कहा गया। नाजरीन, अब हम आपको इस हमले की पूरी दास्तान सुनाएंगे। ये भी बताएंगे कि उसे वाकयाए फील क्यों कहा जाता है, और ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत इस वाक़े के कितने दिन बाद हुई। नाजरीन कराम, कहानी का आगाज यूं होता है कि अबरहा, जो एक ईसाई फरमान रवा था, हज के मौसम में ये देखकर हैरान हुआ कि अरब के कबील काफलों की सूरत में मक्का का रुख करते हैं। इसने पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? जवाब मिला, ये बैतुल्लाह के हज पर जाते हैं। जब उसे बताया गया कि वो एक पत्थरों से बना हुआ घर है जिसका गिलाफ कपड़े से ढांपा गया है, तो अबरहा के दिल में गुरूर भर गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए इससे कहीं ज्यादा शानदार इबादतगाह तामीर करूंगा। यूं उसने रंग बरंगे पत्थरों से एक अजीमो जमील इमारत बनवाई जिसकी दीवारों पर सोना और चांदी जड़ा गया, अंदर कीमती जवाहरात नस्ब किए गए, रेशमी पर्दे लगाए गए और खुशबुओं से माहौल महका दिया गया। नाजरीन, इमारत इतनी खूबसूरत थी कि चमक के बायस उसकी दीवारें स्याह दिखाई देती थी। उबराहा ने ऐलान किया कि अब किसी को मक्का जाने की जरूरत नहीं, यही इबादतगाह तुम्हारा नया किबला होगी। कुछ कबाइल वाकई उसके फरेब में आ गए और इसी मकाम पर इबादत करने लगे, मगर एक गैरतमंद अरब को यह बात बर्दाश्त न हुई। उसने खुफिया तौर पर रात के अंधेरे में उस इमारत में गंदगी फेंक दी ताकि उबराहा के गुरूर को ठेस पहुंचे। अबरहा को यह खबर मिली तो वो तैश में आ गया। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने अहद किया कि अब वो मक्का का वो घर जिसे अहले अरब अपना मरकज मानते हैं, सफहे हस्ती से मिटा देगा। नाजरीन, यही वो लम्हा था जिसने वाकया फील की बुनियाद रखी। उबरहा ने यमन से अपनी जबरदस्त फौज तैयार की जिसमें बेशुमार सिपाही जरहें और बड़े बड़े हाथी शामिल थे। उनमें सबसे बड़ा और मशहूर हाथी महमूद ताज, जिसे देखकर लोग खौफजदा हो जाते थे। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो उबरहा ने हुक्म दिया कि कुरैश के मवेशी और ऊंट छीन लिए जाए। इन्हीं में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी शामिल थे। नाजरीन, नुफैल नामी एक शख्स जो इब्राहा के लश्कर में मौजूद था और हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त भी था, उसने अबरहा से कहा कि कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब मुलाकात करना चाहते हैं। वो न सिर्फ मक्का बल्कि पूरे अरब में इज्जत व वकार के हामिल है। ये सुनकर अबरहा ने मुलाकात की इजाजत दे दी। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके सामने पहुंचे तो अबरहा ने बड़े ताज्जुब से कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पुरसुकून अंदाज में फरमाया, मैं अपने ऊंट वापस चाहता हूं। यह सुनकर अबरहा हैरान रह गया और बोला, मुझे बताया गया था कि तुम अरब के सबसे बड़े सरदार हो, मगर तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है, इस घर की नहीं जिसे मैं गिराने आया हूं। नाजरीन, ये वो मुकालमा था जिसने तारीख के सबसे इबरत अंगेज वाक़े की बुनियाद रख दी। नाजरीन मुहतरम, जब इब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है मगर उस घर की नहीं जिसे मैं मुनहदम करने जा रहा हूं, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे इत्मीनान के साथ जवाब दिया, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, मगर खाना काबा का मालिक खुद अल्लाह है, वही इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी फिक्र नहीं। यह जवाब सुनकर इब्राहा चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। फिर उसने हुक्म दिया कि अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस कर दिए जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊंट वापस लिए, उन पर निशानात लगाए, समों पर चमड़ा चढ़ाया और उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया ताकि कोई उन्हें दोबारा न छुए। उसके बाद वो अपने चंद साथियों के हमरा हेरा पहाड़ पर चढ़ गए और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, बंदा तो अपने माल और जान की हिफाजत करता है, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। नाजरीन, दूसरी तरफ इब्राहा अपनी पूरी फौज के साथ मक्का की सिमत बढ़ने लगा। वो खुद अपने सबसे बड़े हाथी महमूद पर सवार था। जैसे ही लश्कर ने खाना काबा की जानिब बढ़ने की कोशिश की तो वो अजीमुल जुस्सा हाथी जमीन पर बैठ गया और आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सिपाहियों ने उसे उठाने के लिए लोहे की जरें चलाईं, नेज़े मारे, आग के शोहले दिखाए, मगर हाथी अपनी जगह से ना हिला।
जब उसका रुख यमन या किसी दूसरी सिमत किया गया तो वो फौरन उठकर चलने लगता, लेकिन जूं ही मक्का की तरफ मोड़ा जाता फिर से बैठ जाता। इब्राहा ने गुस्से में हुक्म दिया कि उसे शराब पिलाई जाए ताकि नशे में बहक कर आगे बढ़े, मगर शराब का भी कोई असर ना हुआ। नाजरीन, तब अल्लाह ताला की कुदरत ने वो मंजर दिखाया जिसने हमेशा के लिए उस वाक़े को वाक़या फेल बना दिया। अचानक आसमान की सिमत से परिंदों के झंड नमूदार होने लगे, जो टिड्डी दल की तरह फजा में फैल गए। दूसरी जानिब हजरत अब्दुल मुतल्लिब मक्का में वापस आए, बैतुल्लाह के दरवाजे की जंजीर पकड़कर लर्जती आवाज में दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, हम अपने घर वालों की हिफाजत कर रहे हैं, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। इब्राहा और उसकी फौज तेरी ताकत के सामने बेबस है, आज सलीब को कामयाब ना होने दे। नाजरीन, याद रहे कि इब्राहा ईसाई था, इसलिए उसके लश्कर के साथ सलीबें भी मौजूद थीं। अब्दुल मुत्तलिब की दुआ के बाद वो अपनी कौम को लेकर पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब ये मार्का इंसानों का नहीं, खुदा का है। तभी आसमान से आने वाले उन अबाबील परिंदों ने अपनी चोंचों और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां उठा रखी थीं। हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी। जैसे ही वो लश्कर के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने वो कंकरियां बरसाना शुरू कर दी। उनके लगते ही सिपाहियों के जिस्म चकनाचूर हो गए, गोश्त हड्डियों से जुदा होने लगा। मंजर यूं था जैसे आसमान से बारूद बरस रहा हो। पूरा लश्कर तबाह हो गया, हाथी एक एक करके गिरने लगे। सिर्फ महमूद हाथी जिंदा बचा, मगर सख्त जख्मी हुआ। नाजरीन, यूं रब्बे काबा ने अपने घर की हिफाजत अपनी कुदरत से फरमा दी, और वो वाकया तारीख में वाक़े फील के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया। नाजरीन, रवायात में बयान किया गया है कि इब्राहा के लश्कर में हाथियों की तादाद सैकड़ों में थी, मगर जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो वो सब ऐसे गिर पड़े जैसे किसी ने भूसे को जलाकर उड़ा दिया हो। जैसा कि सूरतुल फील में जिक्र है कि रब्बे काबा ने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई और इन्हें चबाए हुए भूसे की मानिंद कर दिया। नाजरीन, कहा जाता है कि इब्राहा और उसके चंद सिपाही जब ये मंजर देखकर जान बचाने के लिए भागने लगे तो अबाबीलों ने उन्हें भी ना छोड़ा। तबकात इब्न साद में लिखा है कि इब्राहा के जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर जमीन पर गिरता रहा। वो यमन पहुंचने से पहले ही रास्ते में हलाक हो गया और उसका अंजाम इबरतनाक हुआ। दूसरी जानिब हजरत अब्दुल मुत्तलिब और अहले मक्का ये मंजर पहाड़ से देख रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि लश्कर कब हमला करेगा, मगर जब देर तक कोई शोरो गल ना सुनाई दिया तो वो नीचे उतरे। नाजरीन, जैसे ही वो मक्का के हदूद से बाहर निकले तो देखा कि सारा लश्कर बर्बाद हो चुका था। जमीन पर लाशें, हाथियों के मुर्दा जिस्म और तबाहशुदा सामान बिखरा पड़ा था। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत यूं की थी कि किसी इंसान को तलवार उठाने की जरूरत ही पेश ना आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में माले गनीमत का एक बड़ा खजाना आ गया। सोना, चांदी और बेशुमार कीमती सामान उनके कब्जे में आया। नाजरीन, बस 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 के असली रिवायतों में यह भी लिखा गया है कि इब्राहा के लश्कर में कुछ सिपाही ऐसे थे जो भाग ना सके और मक्का में ही रह गए। इन्हीं में वो हाथी बान भी शामिल था जो महमूद नामी हाथी को आगे बढ़ाने की कोशिश में नाकाम हुआ था। ये मनाजिर अहले मक्का के लिए यकीन का सबसे बड़ा सबूत बने कि खाना काबा की हिफाजत किसी इंसान नहीं बल्कि खुद खालिक कायनात ने फरमाई। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की हिफाजत में अपनी बेपनाह ताकत का मुजाहिरा किया और दिखा दिया कि हाथी जैसे बड़े जानवर भी छोटे परिंदों के जरिए नीस्तो नाबूद हो सकते हैं। ये वाकया इंसानियत के लिए एक वाज़े पैगाम है, मगर अफसोस आज के इंसान इस पर गौर नहीं करते। इब्राहा की कहानी कुछ यूं है कि नजाशी हबशा के बादशाह ने उसे सूडान का हुक्मरान मुकर्रर किया और औरियात को यमन का। कुछ अरसे बाद इब्राहा ने यमन पर हमला कर दिया। औरियात अपनी फौज के साथ मुकाबले के लिए मैदान में आया और दोनों अफवाज सरहद पर आमने सामने हुई। इब्राहा जिस्मानी तौर पर छोटा और कमजोर था, जबकि औरियात लम्बा, मजबूत और दलीर था। औरियात ने बराह रास्त मुकाबले की दावत कबूल की, मगर यह इब्राहा की चाल थी। उसने औरियात पर वार किया, मगर होशियारी से अपने मुहाफिज के पीछे छुप गया, जिससे मुहाफिज जख्मी हो गया। औरियात दोबारा संभलने से पहले इब्राहा के एक और मुहाफिज ने अचानक हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया, और इसी वजह से इब्राहा को तारीख में इब्राहा अशरम यानी बेशर्म के लक़ब से याद किया गया। औरियात की हलाकत के बाद उसकी फौज ने फौरन इब्राहा को अपना सरदार तस्लीम कर लिया और यमन पर इसका तसल्लुत कायम हो गया। जब शाह हबशा को यह खबर मिली
तो उसे गुस्सा आया और उसने जवाब तलबी के लिए इब्राहा को खत लिखा। इब्राहा ने चालाकी से जवाब दिया कि वो हमेशा शाह का फरमानबरदार है और ये सब इसलिए किया क्योंकि ओरियात सोदान पर हमले के लिए तैयार था। उसे रोकने के लिए उसने हरकत की और मुकाबले में मारा गया। मजीद कहा कि सोदान और यमन अभी भी शाह के कब्जे में है और वो हमेशा खादिम रहेगा। शाह हबशा इब्राहा के जवाब से खुश हुआ, उसे मुआफ कर दिया और यमन की सरदारी भी सौंप दी। यूं एक होशियार और मक्कार हुक्मरान ने अपनी चालाकी और हिकमत अमली से इक्तदार हासिल किया और यमन में अपनी हुकूमत मुस्तहकम की। नाजरीन, यमन की हुकूमत संभालने के बाद वो वाकया रूनुमा हुआ जिसे आपने अभी सुना, और यही मशहूर वाकया फील के नाम से याद किया जाता है। ये याद रहे कि ये अजीम वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से तकरीबन 50 से 55 दिन कबल महीने मुहर्रम में पेश आया। नाजरीन, एक और वाकया जिसे तारीख में बड़ी अहमियत हासिल है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तूफान का है। बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा, मगर लोग अल्लाह के पैगाम को झुटलाने और गुनाहों में मशगूल रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और बुर्दबारी के साथ उनको कई बरस तक अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर कोई समझने वाला न था। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक अजीम निकाह कश्ती तैयार की जाए जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अहले ईमान और हर नौ के जानवरों के जोड़े दाखिल हों। जैसे ही तूफान आया, जमीन पर पानी की सैलाबी लहरें छा गईं और तमाम काफिरों का खात्मा हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह की हिफाजत में महफूज रही। ये वाकया हमें सब्र, हिदायत की कोशिश और अल्लाह के फैसले के अजीम मज़ाहिर की तरफ मुतवज्जिह करता है। नाजरीन, एक और दिलचस्प वाकया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आतिश का है। बताया जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत का दर्स दिया और अल्लाह के सिवा बुतों की परस्तिश को रद्द किया। इस बात पर कुफ्फार सख्त नाराज हुए और उन्हें जिंदा जला देने का फैसला किया। जब आग रोशन की गई तो अल्लाह की कुदरत देखे, आग उन पर गालिब ना आई, बल्कि अल्लाह ने उसे उनके लिए ठंडी और महफूज बना दिया। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि अल्लाह ताला मोमिनीन की हिफाजत फरमाता है और जालिमों के मुकाबले में उसकी मदद हमेशा मौजूद होती है। नाजरीन, एक और वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कौम का है। फिरौन और उसके लश्कर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को झुठलाया और बनी इसराइल पर जुल्म ढाया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर दरिया की तरफ निकले। जब फिरौन और उसके लश्कर ने पीछा किया तो अल्लाह ताला ने समुंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और बनी इसराइल खुश्क जमीन पर गुजर गए। फिरौन और उसके लश्कर को पानी ने डबो दिया। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि अल्लाह ताला का साथ मुखलिसों के साथ है और जालिम कभी कामयाब नहीं होते। नाजरीन, इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया भी अहम है। उनके भाइयों ने हसद की वजह से उन्हें कुएं में डाल दिया और बाद में गुलामी में फरोख्त कर दिया, मगर अल्लाह की मदद से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के दरबार तक पहुंचे। अपनी हिकमत और सब्र से दुश्मनों के शर को खैर में बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला कभी मायूस नहीं होता और सब्र और हिकमत से मुश्किलात हल हो जाती हैं। नाजरीन, एक और वाकया हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। जब बनी इसराइल ने सोने के बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को सीधी राह दिखाएं। हजरत हारून ने सब्र के साथ लोगों को नसीहत की। इसके बावजूद कुफ्फार ने मुजाहमत की, मगर अल्लाह की हदायत ने सच्चाई को कायम रखा। ये वाकया भी सब्र, क़यादत और अल्लाह की रहनुमाई की अहमियत बताता है। नाजरीन, ये तमाम वाकयात हमें ये सबक देते हैं कि अल्लाह की कुदरत, सब्र, हिकमत और ईमान के साथ मुश्किलात का मुकाबला करना हमेशा कामयाबी की जमानत है और मोमिनीन की हिफाजत हमेशा अल्लाह की जानिब से होती है। एक और अहम वाकया हजरत हूद अलैहिस्सलाम का है, जो आद कौम के पास भेजे गए। हजरत हूद ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और गुनाहों से तौबा करने की तालीम दी, मगर लोग इनकार करते रहे। आद कौम अपने बुलंदो बाला महलों और ताकतवर जिस्मानी कुव्वत के सबब गुरूर में मुब्तला थी। हजरत हूद ने सब्र और नसीहत के साथ उन्हें अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाया। आखिरकार अल्लाह ताला ने एक शदीद तूफान भेजा। हवा और आसमान की जबरदस्त गिरफ्त से आद कौम की तबाही हुई। जो ईमान लाए वो महफूज रहे,
ये वाकया हमें ये सबक देता है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को हलाक कर देता है और अल्लाह के हुक्म के आगे कोई नहीं तक सकता। नाजरीन, एक और वाकया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का है। हजरत सालेह ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और शिर्क से बाज रखने की कोशिश की। उनकी दावत के बावजूद कौम ने अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज किया और एक नाकाबिले यकीन जुल्म किया। हजरत सालेह ने उन्हें अल्लाह का निशान दिखाया, यानी ऊँटनी को उनके लिए मौजज़े के तौर पर पेश किया ताकि ईमान लाए और जुल्म छोड़ दे, मगर कौम ने ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया। नतीजतन अल्लाह की पकड़ आ गई और जबरदस्त जलजले और आसमानी अजाब के जरिए वो कौम मुकम्मल तौर पर फना हो गई। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी आकिबत नागवार लाती है। नाजरीन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया भी बड़ा इबरत आमूज है। जब वो अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे मगर लोग इनकार करते रहे, हजरत यूनुस गुस्सा और मायूसी में शहर छोड़कर रवाना हो गए, मगर अल्लाह ने इन्हें बड़ी मछली के पेट में महफूज कर लिया। 3 दिन बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस आजाद हुए। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता और मोमिनीन की हिफाजत हमेशा अल्लाह के हाथ में है। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया भी काबिल जिक्र है। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश की उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करें, मगर अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक जानवर को कुर्बान करने का हुक्म दिया। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की रजा के लिए कामिल ईमान और इताअत ही कामयाबी का जरिया है। नाजरीन, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया भी इंतहाई इबरत आमोज है। जब अल्लाह ने उनके जरिए अपनी कौम को शिर्क, जुल्म और फहाशी से रोकने की कोशिश की, मगर लोग संजीदा ना हुए। नतीजतन अल्लाह ने उनके ऊपर जबरदस्त अजाब नाजिल किया और सिर्फ हजरत लूत और उनके अहले ईमान को बचाया गया। यह हमें यह सबक देता है कि अल्लाह के हुक्म और हिदायत को रद्द करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। नाजरीन, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों का वाकया भी यादगार है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हसद और साजिश के बावजूद अल्लाह की मदद से आला मकाम हासिल किया और दुश्मनों के शर को खैर में बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा और सब्र के साथ हर मुश्किल हल की जा सकती है और अल्लाह की नुसरत मोमिन के साथ हमेशा होती है। नाजरीन, ये तमाम वाकयात हमें यह सबक देते हैं कि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब है। सब्र, हिकमत और ईमान के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं, और जो लोग अल्लाह की हिदायत पर चलते हैं उनकी हिफाजत हमेशा अल्लाह फरमाता है। नाजरीन, एक और इबरत आमोज वाकया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मिस्र के बादशाह का है। हजरत यूसुफ की जिंदगी में उनके भाइयों के हसद ने उन्हें कुएं में डाल दिया और गुलामी में फरोख्त कर दिया, मगर अल्लाह की मदद से वो मिस्र पहुंचे और अपनी हिकमत, इल्म और हिल्म के जरिए बादशाह के दरबार में आला मकाम हासिल किया। उनकी बसीरत ने मिस्र में कहत के दौरान लाखों लोगों की जिंदगी बचाई और दुश्मनों के शर को खैर में बदल दिया। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि अल्लाह पर भरोसा और सब्र हर मुश्किल में कामयाबी की जमानत है। नाजरीन, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया भी बहुत अहम है। वो एक इंतहाई साबिर नबी थे जिन्हें बीमारी, गुर्बत और खानदान के नुकसान का सामना करना पड़ा, मगर हजरत अय्यूब ने अल्लाह की तरफ रुजू जारी रखा और सब्र शुक्र के साथ आजमाइशें बर्दाश्त की। बिल आखिर अल्लाह ताला ने उनकी सेहत, मालो दौलत और खानदान को बहाल कर दिया। यह वाकया हमें यह सबक देता है कि मुसीबत और तकलीफ में सब्र, शुक्र और अल्लाह पर एतमाद ही नजात का जरिया है। नाजरीन, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वाकया भी काबिल जिक्र है। वो मदयन की कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, मगर लोग धोखादही और सूदखोरी में मशगूल रहे। हजरत शुएब ने सब्र और तहम्मुल के साथ उन्हें नसीहत की, मगर जब लोगों ने इनकार किया तो अल्लाह की पकड़ आई और जमीन उनको निगल गई। यह हमें यह सबक देता है कि जुल्म, धोखादही और नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह का अजाब यकीनी है। नाजरीन, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाकया भी बहुत सबक आमोज है। जब वो बूढ़े हो गए और उनका कोई वारिस नहीं था तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक सालेह बेटा अता फरमाए। अल्लाह ने दुआ कबूल की और याह्या अलैहिस्सलाम उनके घर पैदा हुए। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि अल्लाह पर कामिल यकीन और दुआ में इखलास इंसान की जिंदगी में मौजिज़ात पैदा कर सकता है। नाजरीन,
हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का वाकया भी अहम है। वो अल्लाह की राह में नेक किरदार, आजजी और तकवा के लिए मशहूर थे। उन्होंने शिर्क और जुल्म के खिलाफ नबियों की सुन्नत की पैरवी की। बिलाखिर यजीद और दीगर जालिम हुक्मरानों के जुल्म के बावजूद अल्लाह ने उनकी जिंदगी के असरात और तालीमात को हमेशा जिंदा रखा। यह हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की हिदायत के रास्ते पर चलने वाले की इज्जत दुनिया और आखिरत में बरकरार रहती है। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया भी काबिल जिक्र है। उनकी विलादत मुअजिजाती थी। उन्होंने मुअजिजात दिखाए, लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और सब्र हिल्म से तालीम दी। उनकी जिंदगी जुल्म, झूठ और कुफ्र के बावजूद अल्लाह की मदद और हिकमत का मुजाहिरा थी। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत, नुसरत और कामयाबी हमेशा मुमकिन है। नाजरीन, ये तमाम वाकयात वाज़ेह पैगाम देते हैं कि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब है। सब्र, हिकमत, तकवा और ईमान के बगैर कोई कामयाबी मुमकिन नहीं। और जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत और मदद हमेशा फरमाता है। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए और हमें दीन की कामिल समझ अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में आप जरूर अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखें और अपनी दुआओं में इसे याद करें।